السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامان، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ کالیشورم کمیشن کو BRS کے خلاف سیاسی سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کانگریس حکومت پر ہریش راؤ کا الزام۔ عوام کے لیے عہدہ چھوڑنے تیار، بے غیرتی کی زندگی نہیں جی سکتا، وزیر بنانے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، راج گوپال ریڈی کا سنسنی خیز بیان۔ جگت گیر گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں ریسٹورنٹ میں چائے پی رہے شخص کا بے رحمانہ قتل، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ مرچل میں واقع مکان میں پکوان گیس سلنڈر پھٹ پڑا، راستہ چلنے والے شخص کی موت، 3 زخمی، مکان منہدم۔ معین آباد میں سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک۔
और उड़ीसा से बराह हैदराबाद उत्तर प्रदेश गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार, ईगल और नारकोटिक्स की कार्रवाई। और पेश खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना हुकूमत की तहकीकात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हरीश राव ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट 3 बार मुनहदिम हुआ, लेकिन एनडीएस से एक बार भी मुकाम वाक़े का दौरा नहीं किया। जब मेडीगुड्डे का मामला सामने आया, एनडीएस से बिन बुलाए पहुंच गई और असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात के सामने 3 बार अपनी रिपोर्ट पेश की। अब जबकि मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने वाले हैं, हुकूमत कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को सियासी साजिश के लिए इस्तेमाल कर रही है। हरीश राव ने कहा कि न तो उन्हें और न ही केसीआर को कोई नोटिस मिली है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मीडिया के जरिए ये इंकशाफ करवा रहे हैं कि बीआरएस लीडर्स को समन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम कमेटी की रिपोर्ट सच है तो हकीकत में मरकजी हुकूमत इसकी मुजरिम है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट की मंजूरी मरकजी हुकूमत के जरिए दी गई थी। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम कमीशन की 650 सफ़ात की रिपोर्ट असेंबली में पेश करें, हम इसे फाड़ देंगे। हम अवाम के सामने सच्चाई को लाएंगे और हकीकत को बेनकाब करेंगे। हरीश राव ने वजीर आबा श्री उत्तम कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती वजीर हरीश चंद्र की तरह बातें कर रहे हैं। మరి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మీరు? 2 పిల్లర్లు గుంగుతేనే కేసీఆర్ మీద చర్య తీసుకోవాలి, ఇరిగేషన్ మంత్రి మీద చర్య తీసుకోవాలంటున్నావు. మరి పోలవరం 3 సార్లు కూలితే పోలవరం కట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వ అధినేత ప్రధానమంత్రి మీద చర్య తీసుకుంటావా? ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మీద చర్య తీసుకుంటావా? ఎందుకో మాట్లాడరు అక్కడ. పోలవరం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మరి పోలవరం కూలితే ప్రధానమంత్రి నైతిక బాధ్యత వహించాలనా? పోలవరం కూలితే ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలనా? అక్కడ ఎందుకో మాట్లాడరు. మరి ఇదే గోదావరి నది కిందికి మేడిగడ్డ మీద ఉంటుంది, కిందికి పోతే పోలవరం. మరి 3 సార్లు కూలింది, ఈడ కుంగినాయి 2 పిల్లర్లు. మరి ఆడికి ఎందుకో ఎన్డీఎస్ఏ పోదు, ఆడెందుకో రిపోర్ట్లు రావు, అక్కడెందుకో నైతిక బాధ్యత మాట్లాడరు. ఇదంతా రాజకీయ కుట్రతోని 2 పిల్లర్లు గుంగితే ఇంత కథ చేస్తారు. ఇక ఇంకా అసలు పాయింట్ చెప్పాలి. గమ్మత్ ఏంటంటే పోలవరం కూలినప్పుడు దానికి ఇంజనీర్ ఎవరు తెలుసా? ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన చంద్రశేఖర్ అయ్యర్. ఆయన కట్టిందే కూలింది, ఆయన చీడ మనకు చెప్తారట్టుగా. गवर्नमेंट विप ए श्रीनिवास ने कहा कि पीसी घोष कमीशन रिपोर्ट पर हरीश राव बगले बजा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव को पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये एक जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट है, ये वजीर आला या उत्तम कुमार रेड्डी की रिपोर्ट नहीं है। पीसी घोष पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पीसी घोष कमीशन पर जानिबदाराना रिपोर्ट देने का इल्ज़ाम केसीआर और हरीश राव के अलावा दीगर ने भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी और हरीश राव को जुडिशियल इंतजामिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हरीश राव को तेलंगाना भवन में गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। तमाम सियासी जमातों के राय मशवरे के लिए हुकूमत असेंबली में पीसी घोष रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाएगी। उन्होंने हरीश राव से कहा कि अपोजिशन लीडर को असेंबली में लाकर उनसे बात करवाएं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि अवाम को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, पेपर बैलेट के जरिए इंतखाबात मुनक्किद करें। बीआरएस की वफ्द ने मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो उसे नहीं मिल रहा है, ये मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम रिपोर्ट में कुछ नहीं है। 600 सफ़ात पर मुश्तमिल पूरी रिपोर्ट पर 2 अखबारात मनमानी तौर पर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर केसीआर और बीआरएस के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट पर शक शुबात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने वाली पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। केटीआर ने कहा कि असेंबली में बात करने का मौका दें तो हुकूमत के साथ फुटबॉल की तरह खेलेंगे। केटीआर ने कहा कि बीसी तबके का कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। దాన్ని ధర్నా అనో జోక్ అంటాను, ఎందుకంటే
మేము ఈ మాట శాసనసభలో బిల్లు పెట్టినప్పుడే చెప్పాం. యు ఆర్ కటింగ్ అ వెరీ క్రూయల్ జోక్ ఆన్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్. అంటే బీసీలను మోసం చేస్తూ మీరు దగా చేస్తున్నారు, వంచిస్తున్నారని చెప్పాం. ఇవాళ నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సమాధానం ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. 42% రిజర్వేషన్లు అని ఢిల్లీకి వచ్చి డ్రామా చేస్తా ఉన్నారు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని అడుగుతా ఉన్నా, మీరు బీసీ డిక్లరేషన్ లో ఒక ఈ రిజర్వేషన్ల మాటని ఇయ్యలేదు. మీరు ఏమేం మాటలు చెప్పినారు? సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఇస్తామన్నారు. 5 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ బీసీలకు ఇస్తామన్నారు. బీసీ సబ్ ప్లాన్ పెడతామన్నారు. 42% రిజర్వేషన్ రాజకీయాల్లోనే కాదు, ఉద్యోగాల్లో, ఉపాధిలో, ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల్లో కూడా ఇస్తామన్నారు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా, ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీని అడుగుతున్నా, మీ చేతుల్లో ఉన్నాయేమో చేస్తలేరు. మీ చేతుల్లో బీసీ సబ్ ప్లాన్ ఉన్నది, చేయండి. మీ చేతుల్లో బీసీలకు 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది, చేయండి. 2 బడ్జెట్లు పెట్టారు. ఒక్కొక్క బడ్జెట్లో 20,000 కోట్లు అన్నారు. 2 బడ్జెట్లు కలిపి కూడా 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు. అందులో ఖర్చు అయితే 10,000 కోట్లు కూడా దాటడం లేదు. कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो बेगैरती की जिंदगी जी नहीं सकते, इसलिए वो दोबारा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो अगर एलबी नगर से मुकाबला करेंगे तो वजीर का ओहदा देने का वादा किया गया था, लेकिन मंगोड़ हलके की आवाम के लिए मंगोड़ असम्बली हलके से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि उनको वजीर का ओहदा देंगे तो आवाम को फायदा होगा, वो सब की तरह पैरवी करके रकम नहीं लूटते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होने पर वजीर का ओहदा देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि वो ओहदे की आड़ में रकम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट को कामयाब बनाने पर वजीर का ओहदा देने का वादा किया गया था, लेकिन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों से आने वाले और जूनियर्स को भी वजीर बनाया गया। उन्होंने कहा कि किसी के रहम करम पर रुकने असम्बली नहीं बने और वो बेगैरती की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके हलके की आवाम का सर झुक जाए। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में मुजाहरा किया। एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि हमने पार्लियामेंट में तहरीक इल्तिवा पेश की थी और आगे भी हमारा ये अमल जारी रहेगा। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि कल हम जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने लैब टेक्नीशियंस और स्टाफ नर्सेस की मुलाजिमतों के लिए जायदादों पर तकर्रुरात का इशारा दिया है। बताया जा रहा है कि 1,284 लैब टेक्नीशियंस और तकरीबन 2,312 नर्सिंग के अमले की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इम्कान है कि जल्द ही इस सिलसिले में सदाकतनामों की जांच का अमल शुरू होगा। अभी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में एलामिया जारी नहीं किया गया है। हल्का महेश्वरम में राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम अफरा तफरी का शिकार देखा गया। बड़ंगपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक्किदा प्रोग्राम का मुतालिका रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने बायकॉट किया। बीआरएस एमएलए ने रंगारेड्डी के इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू पर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। इससे पहले सबीता इंदिरा रेड्डी ने बीआरएस कारकुनों के हमराह धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में अवामी मसाइल के समाअत और उनकी बरवक्त यकसुई का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने हल्के के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। रुकन असम्बली ने याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास मरकिनाले की सफाई के काम का जायजा लिया। पीर को शहर में हुई बारिश से पैदा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। हल्का याकूतपुरा में मुसलसल तरक्याती कामों की वजह से शदीद बारिश के बावजूद कहीं से पानी जमा होने की शिकायत नहीं मिली है। रुकन असम्बली ने बताया कि गंगानगर नाले का काम भी मुकम्मल हो चुका है।
सीसी रोड का काम भी जारी है। उन्होंने बताया कि हलके के तमाम कॉरपोरेटर्स अपने अपने डिविजन्स में नालों की सफाई के अलावा दीगर कामों के लिए मुतहर्रिक हैं। रुकन असम्बली ने रैन बाजार डिवीजन में सीसी रोड के काम का मुआयना किया। एसआरटी कॉलोनी में 12 लाख और अजमत नगर में भी 12 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड के काम किए जा रहे हैं। दौरे के मौके पर हलके के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्का याकूतपुरा के दबीरपुरा और रैन बाजार डिविजन्स में सड़क की तोसी के कामों के लिए आराजी के हुसूल के सिलसिले में जायदाद मालिकान में चेक्स तकसीम किए गए। अरकान मुक़न्नना जाफर हुसैन मेराज और मिर्ज़ा अहमद बेग ने नागाबौली में 1 करोड़ 52 लाख रुपए, बड़ा बाजार ता रहमानिया मदरसा 5 करोड़ 12 लाख 36,324 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 6 करोड़ 65 लाख 30,324 रुपए बताई गई है। मजलिस के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और वासिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने जीएचएमसी के दफ्तर वाक़े टैंक बंड में एक इजलास में शिरकत की। इजलास में जीएचएमसी के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नायक के अलावा टाउन प्लानिंग महकमे के तमाम एसीपीज ने शिरकत की। इजलास में मास्टर प्लान की जद में आने वाले इलाके जात फतेह दरवाज़ा, हिम्मतपुरा, ईदी बाजार, वटेपल्ली में वाक़ जायदादों के मालिकान को मुआवजा अदा करने के मौजू पर बात की गई। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से अवाम के मफादात को पेश नज़र रखते हुए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने चंदूलाल बारादरी का दौरा करके बलदिया के ओहदेदारों के हमराह सीवरेज पाइप के मसाइल का जायजा लिया, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को मज़कूरा मसले की जल्द एकसुई करने की ताकीद की। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में अलीबाग के इलाके में 35 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई गई। रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में बॉक्स ड्रेन, सीसी रोड और नालों की तोसी के काम किए जा रहे हैं, जबकि अनकरीब चंद नए कामों को भी मंजूरी मिलने वाली है, जिसका सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। अलीबाग के मकीनों ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने जलपल्ली और शाहीन नगर का दौरा किया। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर जलपल्ली और शाहीन नगर के लिए 3 करोड़ रुपए लागती प्रोजेक्ट मंजूर करवाए हैं। मज़कूरा बजट से 2 करोड़ रुपए की लागत से नई बॉक्स ड्रेन पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा 1 करोड़ की लागत से वीडीसीसी रोड के काम भी मुकम्मल हो गए हैं। मिर्जा अहमद बेग, रुकन असम्बली अहमद बलाला और जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकटराम ने मुआयना किया। मिर्जा अहमद बेग ने सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से मुलाकात करके तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात बताईं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। जोमैटो के डिलीवरी बॉयज ने उप्पल में कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी डिलीवरी बॉयज का कहना था कि कंपनी की तरफ से उन्हें मौसर तरगीबात नहीं दी जा रही हैं। यौमिया 12 से 14 घंटे काम के बावजूद भी वो 500 रुपये भी कमा नहीं पा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इंश्योरेंस के अलावा मौसर तरगीबात का मुतालबा किया है। तेलंगाना में गांजे की मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईगल और साइबराबाद नारकोटिक्स विंग ने आरएनसीसी खम्मम के साथ मिलकर 847 किलो गांजे को जब्त किया है।
बताया जा रहा है कि बेंगलुरु कौमी शाहराह थंडोपल्ली देहात के पास ओडिशा से बराह हैदराबाद उत्तर प्रदेश मुंतकिल किए जा रहे गांजे को जब्त किया गया। ईगल और दूसरी टीमों ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम खलादना और राजेंद्र की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि ये लोग ओडिशा के रमेश सोकरी से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में शफी ने गांजे का ऑर्डर दिया था। जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इल्लमा बंडे में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था। ऑटो में आए अफराद ने महलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुताल्लिका पुलिस मसरूफे तहकीकात है। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में बीजापुर शाहराह पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार को पीछे से गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके बाद कार मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से टकरा गई। कार ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। शहर के नवाही इलाके मिर्चल के हदूद में सिलेंडर के फटने से रास्ता चलने वाला एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि साबिक एमपीटीसी के रुकन मुरली के मकान में धमाका हुआ। धमाके के साथ ही अफरा तफरी फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि मकान का हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। मुतासिरा मकान के सामने की दुकान के शटर को भी नुकसान पहुंचा। हलाक हुए शख्स की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है, ताहम इस वाक़े में जख्मी 3 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनके नाम तिरुपतमा, रफ़ीक और दिनेश की हैसियत से की गई है। तीनों को कोम्पली के कालगी दवाखाने में शरीक किया गया है और इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीर की रात हुए इस वाक़े के बाद फोरेंसिक और क्लॉस टीम मुकामे वाक़या पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में मुश्तबा हालत में घूमने वाले शख्स को अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक पी गोपाल के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इसे अदालत में पेश किया था। नवे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वंडा मुरली ने गोपाल को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के चुटकनीपुरा में मंदिर में सरखे की वारदात से सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि दिमागी तौर पर मुतासिर 45 साला जुगल किशोर बारिश के दौरान मंदिर में दाखिल हुआ था। शिवलिंग के ऊपर गौमखी और नकद रकम का सरखा कर लिया। मुकामी लोगों की शनाख्त पर जुगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 के पास नाले के गड्ढे में वाटर टैंकर गिर गई। बताया जाता है कि नाले का छत मुनहदिम हुआ था और इसके बाद वाटर टैंकर इसमें गिर गई। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम कमीशन को BRS के खिलाफ सियासी साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत पर हरीश राव का इल्जाम। अवाम के लिए ओहदा छोड़ने तैयार, बेगैरती की जिंदगी नहीं जी सकता। वजीर बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया, राजगोपाल रेड्डी का सनसनीखेज बयान। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रेस्टोरेंट में चाय पी रहे शख्स का बेरहमाना कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। मिर्चल में वाक़े मकान में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, रास्ता चलने वाले शख्स की मौत, 3 जख्मी, मकान मुनहदिम। मोइनाबाद में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक। और ओडिशा से बराह हैदराबाद उत्तर प्रदेश गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार, ईगल और नारकोटिक्स की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।